Hello friends, myself Kamna Wahi, I am your maths teacher. Today I am going to discuss the chapter number 1st named Number System of class 9. Number system, as you know, in the number system included so many types of different numbers. The first number is starting with the natural numbers. What are the natural numbers? Counting numbers. The counting numbers are known as natural numbers. In the natural numbers, it consists a set of 1, 2, 3, 4 and so on. Why it is so on? Because we don't know our last natural number and the system of natural number is represented by capital N. The next number is whole number. What are the whole numbers? If we include 0 in the natural numbers, then it becomes whole numbers. What are whole numbers? Include 0 also, 0 and then the natural numbers 1, 2, 3, 4 and so on. It becomes the whole numbers and the family of whole number is represented by capital W. The next number is integers. We have discussed counting numbers and then the 0. If we include the negative of natural numbers also, natural numbers including whole numbers, then it becomes the integers. So how we should write it? 0, all the natural numbers and the negative of these numbers, -1, -2, -3 and so on. And it becomes the family of the integers. The family of integers is represented by capital Z. The next one is rational number. What do you know about the rational number? Most of the students know that a number of the form P upon Q, जहाँ पर दो कंडीशंस और होती हैं. फर्स्ट इज P एंड Q आर इंटीजर्स और एक और कंडीशंस होनी चाहिए P, Q are co-prime. Co-prime means they have the common factor none other than the 1. Also, Q not equal to 0. ऐसा कोई भी नंबर. Let us take an example. 4 upon 5 minus 90 upon 11. As you can see, 4 is integer, 5 is also an integer. So it is an integer Q. It is not equal to 0 और इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? सिर्फ 1. 4 और 5 दोनों इकट्ठे किसी भी टेबल पर नहीं जाते, तो दे हैव द कॉमन फैक्टर 1, सो दे आर को-प्राइम. सिमिलरली -90 P भी हमारे पास क्या है? इंटीजर. Q भी इंटीजर है, तो दोनों ने मिलाकर P अपॉन Q फॉर्म बना दी. हमारे पास यहाँ Q 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0 और इन दोनों का फिर से कॉमन फैक्टर क्या है? 1, सो दे आर को-प्राइम. इस तरह से ये नंबर्स क्या बन जाएंगे हमारे पास? रेशनल नंबर्स. आफ्टर रेशनल नंबर्स वी विल प्रोसीड टू इरेशनल नंबर्स. क्लियरली the next is irrational numbers. Very easy. The numbers which
cannot be expressed in rational form, they become the irrational, and its type will be under root p, or you can take the more example, under root 11, under root 3, under root 2. All these are the example of irrational numbers, and the family of irrational numbers is represented by capital S. The last number is the real numbers. All these family collectively, collection of rational and irrational numbers together form real numbers. सभी तरह के नंबर्स की फैमिली को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आ गए हमारे पास? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, irrational numbers, and collectively they form the real numbers. So the next number is, इसके अलावा भी हमारे पास मैथ में कई तरह के नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. लेट अस डिस्कस द इवन नंबर and the odd number. Now what is even number? If the unit digit of a number is 0, 2, 4, 6, 8, then it becomes the even number. For example, 4, 6, 7, 8, 3, 2, 9, 1, 7, 0, 1, 5, 3, 2, 5, and this is 2. What we have to check? Only you have to check the unit digit. If its unit digit is divisible by 2, then it becomes the even number, and if its unit digit is not divisible by 2, that is unit digit is 1, 3, 5, 7 and 9. तो ये हमारे पास क्या बना देंगे? ऑड नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 9, 3, 4, 5, 6, 5, 5. Just check the unit digit. What are the unit digit? Unit digit is 9, so it become odd number. Unit digit is 5, so it become the odd number. This is all about the even number and the odd number. The next is prime number and the composite numbers. Prime numbers and composite numbers. The first is, what are prime numbers? A number having exactly 2 factors. अब वो 2 factors कौन कौन से होने चाहिए इसके पास? Only 1 and itself. कोई भी ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और itself become the prime number. और कोई भी नंबर, a number having more than 2 factors, अगर उसके पास 1 और itself के अलावा भी कोई नंबर आ जाता है, more than 2 numbers, then it become composite number. Let us take some examples. 3, 5, 91, 200, 201. What are these? 3.
3 सिर्फ अपने टेबल पर जाता है, इट्स फैक्टर इज ओनली 1 एंड इटसेल्फ, सो इट विल बी द कंपोजिट नंबर। 5 भी किसी के टेबल पर नहीं जाता, इट कम्स ओनली 1 और 5, तो 5 इज आल्सो, इट बिकम्स द प्राइम नंबर्स। 91 13 के टेबल पर जाता है, 13 7s are 91, so 91 is our composite number. What about the 300 201? 201 हमारा क्या जाएगा 3 के टेबल पर, और ये भी क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के रिगार्डिंग आपको 2-3 थिंग्स और ध्यान रखनी है। सबसे पहले 1, व्हाट इज 1? चेक इज इट अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। सो सी, कोई भी नंबर होगा तो 91 मल्टीप्लाई बाय 1 91, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, मीन्स 1 दोनों में ही आता है, इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। हम 1 को किसी में भी इंक्लूड ही नहीं करते। उसके बाद आता है 2 क्या जाएगा हमारे पास, 2 हमारा लीस्ट प्राइम नंबर है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, दे राइट द 2 एज अ कंपोजिट नंबर, बट 2 इज लीस्ट प्राइम नंबर। 2 के बाद 3 भी हमारा, 3 के भी कोई फैक्टर नहीं है, तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। और इस तरह से हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से। 4 इज लीस्ट कंपोजिट नंबर। इसके बाद के नंबर आप डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो किसी टेबल पर जा रहे हैं देन दे विल बी द कंपोजिट नंबर, और अगर वो किसी भी टेबल पर नहीं जा रहे तो इसका मतलब दे आर द प्राइम नंबर्स। इसके नंबर्स के अलावा भी आपके पास 9th में कुछ नई टाइप्स के टर्म्स ऐड होती हैं। द फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड द नॉन टर्मिनेटिंग। लेट अस डिस्कस terminating and non-terminating। Terminating का मतलब क्या है, which come to an end after few decimal point। कुछ नंबर्स डिवाइड करने पर 1-2 डेसिमल के बाद ही हमारे पास एंड हो जाते हैं, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग आते हैं। एंड विच नेवर कम टू एन एंड कंसीडर्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग decimal. Let us take some examples again. Examples are 1/2। जैसे ही आपने 1/2 को डिवाइड किया you get the answer 0.5, तो 0.5 आते ही ये टर्म खत्म हो गई, so it become the terminating। Take more example, 10/3। 10/3 को जब आप डिवाइड करते हो you will get 3.333 and so on। इट मीन्स ये कभी भी एंड नहीं होगा और ये क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे डैश डैश से, जिसका मतलब होता है ये टर्म एंड नहीं होगी। सिमिलरली वी कैन गिव द मोर एग्जांपल 2.412 एंड दिस वन इज 4.196738 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी आ रही है, लेकिन हर बार डिवाइड करने पर ये आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, तो इट बिकम द नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर ये डिवाइड करने पर कुछ एक डेसिमल के बाद खत्म हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर्स। हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं, कोई भी रेशनल नंबर्स, अभी मैंने आपके पास 2 एग्जाम्पल लिए 1/2 और 10/3। 1/2 क्या बना हमारे पास टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये हमारे पास क्या आया था 0.5, और 10/3 क्या बना था नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से आपके पास एक पॉइंट आता है कि रेशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग आल्सो कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग। द नेक्स्ट इज रिपीटिंग डेसिमल, और यू कैन से रीअकरिंग
reoccurring decimals and non-reoccurring. Non-reoccurring ये क्या है? If decimal point is repeating, एक ही डेसिमल नंबर बार बार आ रहा है, जैसे 10/3, 3.333, then it become the example of repeating decimal. हम इसको रिपीटिंग बोल देते हैं, कई बार रीअकरिंग भी बोला जाता है. और नॉन रीअकरिंग क्या होगा? इफ द डेसिमल्स आर नॉट रिपीटिंग. The best example is the value of pi 22/7. जैसे ही आप 22/7 को डिवाइड करोगे you will get 3.141 and so on. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारे पास ये वैल्यू कंटिन्यू हो जाएगी. ये क्या है आपके पास? नॉन रिकरिंग, जिसके डेसिमल्स पॉइंट रिपीट नहीं होते. इनको लिखने का एक शॉर्टकट भी आता है. इसको हम रिपीटेड लिखने की बजाय यहाँ पर 3.3 बार लिख देते हैं. जिस लाइन के ऊपर बार आता है उसका मतलब वो डिजिट हमने रिपीट करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट 18.48 बार, तो इसका 4.484848. लेकिन अगर यही चीज़ आप लिखें 18.480 और 4 के ऊपर बार ना डला हो, तो ये लिखा जाएगा 18.4808080. बी केयरफुल, सिर्फ बार वाली टर्म आपके पास रिपीट होती है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आप रिपीट नहीं करेंगे. इस बेसिस पर अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1. इज 0 अ रेशनल नंबर? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, चेक इज 0 अ रेशनल नंबर. अब 0 देखते ही आप सब कह देंगे नो, 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर. लेकिन बी केयरफुल, एज वी नो दैट 0 upon any number is equal to 0. So 0 can be written as 0.1, 0.2, 0.3. 0 के नीचे कोई भी नंबर लिख दीजिए. क्लियरली इट इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 के इक्वल है ही नहीं, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये सारी रेशनल नंबर्स की क्वालिटीज, जो हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी उसकी प्रॉपर्टीज को पूरा क्लैरिफाई कर रहा है. तो ये सब क्या बन जाएंगे? इट बिकम्स अ 0 कैन बी रिटन एज 0.13. सो इट बिकम्स अ रेशनल नंबर of the form P/Q, where हम फॉर्म की डेफिनेशन लिखेंगे. Q is not equal to 0. P and Q both are integers and ये दोनों क्या है? को-प्राइम. 0, 1, 0, 2 ये दोनों क्या चल रहे हैं आपके पास? को-प्राइम. सो इट बिकम अ 0. क्लियर? Let's discuss the next question of the same chapter. In this question we have to check the type of number. Is it rational? Is it irrational? Is it terminating? Is it non-terminating? So how to check? I have taken some examples. Firstly, 42/100. We can write 42/100 as 0.42. As you can see, 42/100 it is a rational number. अगर आपसे रैशनल इरेशनल पूछा जाए तो यू कैन राइट इट इज़ अ रैशनल नंबर. और अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में पूछा जाए तो ये 0.42 के बाद खत्म हो गया तो इट इज़ टर्मिनेटिंग. द नेक्स्ट इज 327/500. इसको 500 से डिवाइड करने की जगह आप 327/5 × 100 करिए. 5 से डिवाइड करते यू विल गेट
65.4 upon 100 which is equal to 65.4 upon 100, it can write as 4560 point. Again, यहाँ से तो आपने बता दिया इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, लेकिन जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये इसके बाद खत्म हो गया, सो इट विल बी टर्मिनेटिंग. The next is 1.01001, the next term can be 0001. यहाँ पर क्या है ये हमें नहीं पता, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म कौन से आने वाली है. यहाँ मिड में जाके आपसे टर्म पूछी जाए देन नो वन कैन टेल मी कि मैम यहाँ पर कितने जीरो के बाद 1 लिखा जाएगा. इन दैट केस इट बिकम द नॉन टर्मिनेटिंग. जब भी आपको डेसिमल के बाद कौन सी टर्म आने वाली है, रिपीटेड टर्म ना हो, तो ये बन जाती है नॉन टर्मिनेटिंग. एंड यू कैन सी 01, 001 ये हमेशा टर्म्स चेंज हो रही हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग. ना तो रिपीट हो रही है और ना ही खत्म हो रही है. द नेक्स्ट इज 1/11. 1/11 इज 0.90909. I can write it as 0.09 in the short form. From here you can tell it is a rational number. And this one 0909 ये क्या है, कभी भी खत्म नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि हमेशा एक ही टर्म रिपीट हो रही है 0909. The next is under root 23. As 23 is a prime number, और अगर ये प्राइम नंबर है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, सो रूट 23 भी क्या बन जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर. सिंप्लीफाई करने पर ही आपको पता चलता है कि वो रैशनल है या इरेशनल. लाइक अंडर रूट 225. अंडर रूट 225 क्या है, 15 का स्क्वायर. तो 15 can be written as 15/1. Automatically you can see it is of the form p/q, और जो भी नंबर p/q की फॉर्म का होता है वो क्या बन जाता है आपके पास, रैशनल नंबर. दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम. रैशनल नंबर, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, सभी तरह के नंबर्स जो इस चैप्टर्स में क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं. You will go through from these type of question, and the next question we will discuss in the next video. Thank you. Have a nice day.